পূজার প্রাককালে মা দুর্গার কাছে আজকে এটাই প্রার্থনা করি, হে মা দুর্গা, তুমি তো মহিষাসুরকে বধ করে অসুর শূন্য করেছ পৃথিবীকে। মহিষাসুর তো আর নেই, তাই এবার মহিষাসুরীকে বধ করো, শূন্য করো, এই মুক্ত করো, উদ্ধার করো ত্রাতা সমস্ত মানুষকে। আজকে যখন এয়ারপোর্টে আমি ছিলাম, যখন ঢাক বাজছে, সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এত ঢাক কিসের। আমি বললাম, মমতা ব্যানার্জিদের বিসর্জনের বাজনা তো আগেই বেজে গেছে, এখন নাড্ডাজির আগমনে বিজেপির শুভ আগমনের বার্তা ঢাকের মধ্য দিয়ে বাজতে শুরু করেছে। বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয়। ধন্যবাদ রাহুল সিনহা মহাশয়কে। আমরা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মাননীয় নাড্ডাজিকে একবার জোরে করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব। প্রদীপ জ্বালিয়ে, প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমাদের আজকের এই সভার শুভ সূচনা করবেন ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি। ভারত মাতা কি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। পুষ্পার্ঘ নিবেদন করবেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডাজি মহাশয়, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়, বন্দে মাতরম। এরপর বন্দে মাতরম। সবাই যে যার বসার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন, আমরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করব। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম, वन्दे मातरम्। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित मधुरभाषिणी मातरम्
वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ। সকল সাধারণ সম্পাদকদের আমি অনুরোধ করব তারাও আসুন। এই জেলার সভাপতি মাননীয় কিশোর করদা। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। দিলীপ দাকে অনুরোধ করব মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে শাল আর দুর্গার আসন্ন দুর্গা পুজো, সেই দুর্গা পুজোর দেবী স্মারক দিয়ে এবং শাল পরিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে বরণ করে নেবে এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের বরণ করার জন্য অনুরোধ করব। কৈলাসজি, শিবপ্রকাশজি, অরবিন্দ মেননজি, মুকুল রায়, দেবশ্রীদি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায়, পুস্তক 370 ধারা আপনারা জানেন রদ হয়েছে, 35-কে বিলোপ করা হয়েছে। আর সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা ছোট বই, আর সেই বইয়ের আমাদের শুভ উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি। সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের বলবো আপনাদের ওপরে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারা দয়া করে ওপরে গিয়ে আপনাদের স্থান গ্রহণ করুন। রাষ্ট্রীয় একতা অভিযান, এক দেশ এক সংবিধান, আর তাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে আজকে জনজাগরণ সভায় এই সল্টলেকের EJCC-তে আমি স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্যে রাজ্যের লড়াকু নেতা রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করছি তার স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। भारत माता की, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। আজকের এই
মহতি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবার আদরের এবং প্রেরণার কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় কার্যকারী সভাপতি সম্মাননীয় জেপি নাড্ডা মহোদয়, তিনি কার্যকারী সভাপতি হওয়ার পরে প্রথমবার পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। আমাদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার। সকাল দুপুর থেকে এয়ারপোর্ট থেকে তাকে স্বাগত করার জন্য শত শত কার্যকর্তা উপস্থিত হয়েছেন। এখানে আমরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তার বক্তব্য শোনার জন্য ডেকেছি। আমি রাজ্য সভাপতি হিসাবে তার এই প্রথম আগমন উপলক্ষে ওনাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সবসময় বেশিরভাগ সময় পশ্চিমবাংলায় থাকেন, আমাদের অবজারভার মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গী, আমাদের সর্বভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক মাননীয় শিবপ্রকাশজি, প্রদেশের অবজারভার বহু পুরনো সংগঠক আমাদের পার্টির মাননীয় অরবিন্দ মেননজি, এবং সর্বভারতীয় সম্পাদক আমাদেরই বাংলার প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় রাহুল সিনহা, সর্বভারতীয় সমিতি সদস্য প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় মুকুল রায়, আমাদের বাংলার থেকে যে দুজন মন্ত্রী, তার মধ্যে এবার নতুন মন্ত্রী হয়েছেন রায়গঞ্জের এমপি শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী, আমাদের প্রদেশের দুজন সংগঠন সম্পাদক মাননীয় সুব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কিশোর বর্মন, এছাড়া পেছনে বসে আছেন প্রদেশের 5 জন সাধারণ সম্পাদক, উপস্থিত সমস্ত নেতৃবর্গ, সুধী নাগরিকবৃন্দ, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। খুবই আনন্দের কথা, পুজোর প্রাক মুহূর্তে আমরা মাননীয় নাড্ডাজিকে স্বাগত করার সুযোগ পেয়েছি। নাড্ডাজি এখন হয়তো কার্যকরী সভাপতি হিসাবে এসছেন, আমাদের নেতা হিসাবে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার সঙ্গে তার বহু বছরের সম্পর্ক, এবং গত 3-4 বছর ধরে যখন আমরা লোকসভার প্রস্তুতি শুরু করি, কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং এমপিকে এবং মন্ত্রীকে আমাদের পশ্চিমবাংলার কয়েকটি পার্লামেন্ট সিটের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তর বাংলার 6টা সিট, আলিপুরদুয়ার থেকে একেবারে রায়গঞ্জ বালুরঘাট পর্যন্ত, মালদা পর্যন্ত মাননীয় জেপি নাড্ডা বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন, এবং আমাদের সৌভাগ্য এবং খুবই উৎসাহের ব্যাপার যে তার মধ্যে 6টা সিটই আমরা প্রায় জিতেছি। সেই জন্য নাড্ডাজিকে আমি বিশেষভাবে আমাদের তরফ থেকে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। কুচবিহার भी, हाँ वहाँ से 6 সিট। তো সেই জন্য তার যে বাংলায় যে আজকে আমাদের বিরাট উত্থান হয়েছে, 18টা এমপি সিট জিতেছি, তার মধ্যে একটা বড় যোগদান মাননীয় নাড্ডাজির আছে। আমাদের যেদিন থেকে তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমাদের সবার আগ্রহ ছিল যে নাড্ডাজি আমাদের এখানে আসুন, তাকে আমরা আমাদের সাথী হিসাবে, আমাদের নেতা হিসাবে একবার অভিনন্দন করি। কিন্তু আগস্ট মাস থেকে অপেক্ষা করতে করতে আর এই সেপ্টেম্বরের শেষে উনি আসার সুযোগ পেয়েছেন ব্যস্ততার কারণে। তাই আজকে আমরা বিশেষভাবে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমরা আশা করব তার সহযোগিতা, আশীর্বাদ এবং উৎসাহ আমরা মাঝে মধ্যে পাব। কারণ তিনি খুব ভালোভাবে বাংলাকে কাছ থেকেই দেখেছেন, বাংলার কাজের সম্বন্ধে তার ধারণা আছে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য যে আমরা লড়াই করছি, যাতে গত 2013 সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের 18 জন কার্যকর্তা বলিদান দিয়েছেন। আগামীকাল সেই বলিদানীদের তর্পণ করার জন্য মাননীয় নাড্ডাজি বিশেষভাবে আজকে এসছেন, এটা আমাদের কাছে গৌরবের ব্যাপার। আগামীকাল বাগবাজার ঘাটেতে, গঙ্গার ধারে সেই সমস্ত রাজনৈতিক যারা শহীদ, আমাদের যে পরম্পরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শুরু করেছিলেন সেই 53 সাল থেকে, জনসংঘের প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সেই পরম্পরা এখনও চলেছে। দেশের জন্য বলিদান দেওয়া জনসংঘ বিজেপির পরম্পরা, সেটা আমাদের অতি সাধারণ কর্মী, গ্রামের শিক্ষিত সাধারণ পরিবারের ছেলেরাও বাংলার পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর বলিদান দিয়ে চলেছেন। সেই শহীদদের তর্পণ করার জন্য মাননীয় নাড্ডাজি এখানে এসেছেন। বাংলার প্রতি যে বিশেষ গুরুত্ব আছে বিজেপি কেন্দ্রের, এখান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এবং গত কয়েক বছরের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, যখন থেকে বিজেপির উত্থান শুরু হয়েছে, আমাদের সংগ্রাম লড়াই শুরু হয়েছে, টিএমসি আমাদের আটকাবার জন্য হিংসার রাস্তা নিয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপিকে আটকাবার চেষ্টা করছে। প্রায় 28,000-এর বেশি কেস এখন আমাদের কর্মীদের উপরে চলছে, 50-60 হাজার কর্মীর উপরে কেস আছে, আর বেশিরভাগই সব মিথ্যা, ফলস কেস। আমি রাজ্য সভাপতি, আমার থেকে আরম্ভ করে আমার বুথ সভাপতি পর্যন্ত কাউকে তার থেকে ছাড়া দেওয়া হয়নি। এক একজন কর্মীর উপরে 2-3 জায়গায় কেস, বিভিন্ন জেলাতে কেস, খালি আমাদেরকে সমস্যায় ফেলার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য এই ধরনের প্রয়াস করা হয়েছে।
কিন্তু এতেও বিজেপিকে আটকানো সম্ভব হয়নি। আমাদের পরিশ্রম তপস্যা দ্বারা আমরা সাধারণ মানুষের মন এবং হৃদয় জিততে সফল হয়েছি। তাই এবারের নির্বাচনে 2,30,00,000-এর বেশি ভোট আমরা পেয়েছি। 14 সালে মাত্র 86 লাখ ভোট ছিল, আর 17% থেকে আমরা 40% পার করেছি ভোট। 2 জন মাত্র আমাদের এমপি ছিলেন বাংলায় দুবার, সেটাকে আমরা এবার 18 নিয়ে যেতে পেরেছি, কারণ আমরা বাংলার মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছি। আর তার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, লড়াই করতে হয়েছে। এখনও কয়েক হাজার মানুষ গ্রাম ছাড়া আছেন, ঘর ছাড়া আছেন, কয়েক হাজার কর্মী জেলে আছেন, তাদেরকে মিথ্যা কেস দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ জেলে যাচ্ছে আর কেউ না কেউ বেল পাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজ করছি। সারা ভারতবর্ষ বাংলার পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ নজর দিয়েছেন। তাই আমাদের এখানে 4 জন সর্বভারতীয় কার্যকর্তাকে বিশেষভাবে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মাননীয় কৈলাসজি, মাননীয় শিবপ্রকাশজি, মাননীয় অরবিন্দজি, এবং পাশের রাজ্য উড়িষ্যা থেকে মাননীয় সুরেশ পূজারি অবজারভার হিসাবে পশ্চিমবাংলার কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। এদের সামূহিক প্রয়াস, দিগদর্শন, আমাদের পথনির্দেশের ফলে আমাদের কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, তার পরিণাম হচ্ছে 2019-এর 18টা সিট। আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম 19-এ হাফ আর 21-এ সাপ। হাফ আমরা করেছি, মুখ্যমন্ত্রী চমৎকৃত হয়েছেন যে কী করে 18টা সিট পেল। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তিনি ইভিএমকে দোষ দিচ্ছেন, আমাদের কৃতিত্ব করে কে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। বলছেন ইভিএমে জিতেছে, ইভিএমে গন্ডগোল আছে, আমরা ব্যালট চাই। উনি মিছিল করেছেন কলকাতায়। আপনারা জানেন গত মাসে কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয়েছে। 10,000 বুদ্ধিমান লয়ার সেখানে ভোট দিয়েছেন, ব্যালটেই ভোট হয়েছে। 15টা সিটের মধ্যে আমরা 18টা জিতেছি, টিএমসি 3টে জিতেছেন। সেই জন্য পশ্চিমবাংলার উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের সিধে সরল সাধারণ মানুষ যেমন বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, 18টা সিট দিয়েছেন, ঠিক হাইকোর্টের বুদ্ধিমান উকিলরাও বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। সেন উপর থেকে নিচ অবধি, গ্রাম থেকে শহর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, দরিদ্র ধনী, সবাই আজকে বিজেপির সঙ্গে এসছেন বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য। এই পরিবর্তন 2021 সালে সফল হবে। সবার সহযোগিতা আমরা পাবো, সবার সাজেশন আমরা চাই। সেই পরিবর্তনের সাক্ষী হওয়ার জন্য, তার সাথী হওয়ার জন্য সবাইকে আমি আহ্বান করছি, আবেদন করছি, আসুন পশ্চিমবাংলায় একটা পরিবর্তন আনি। এই আহ্বান রেখে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রের কার্যকরী সভাপতি মাননীয় জে.পি. নাড্ডা जी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती देवश्री चौधरी जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हमारे आदरणीय शिवप्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सहयोगी श्री मुकुल राय जी, सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय मंत्री राहुल सिन्हा जी, प्रदेश के संगठन मंत्री सुब्रतो चैटर्जी जी, सह संगठन मंत्री किशोर बर्मन जी, प्रदेश के महामंत्री प्रताप बैनर्जी जी, सायतन बोस जी, राजू बैनर्जी जी, संजय सिंह जी, रविंद्र बोस जी, रतिन्द्र बोस जी, पश्चिम बंगाल के चुने हुए हमारे सभी वरिष्ठ सांसदगण, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भद्रजन, हमारे सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो अपनी के नमस्कार, आपनादेर सकल के दुर्गा पूजार अग्रिम शुभेच्छा। शुभकामना एवं भालोवासा। मित्रों, आज मैं
यहाँ जब धारा 370 के जन जागरण सभा में आया हूँ और मुझे बंगाल के वरिष्ठ सज्जन वृंद भद्रजन से के दर्शन करने के मौका मिला है, और मैं जब इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूँ जैम पैक्ड हॉल, यह एक बात को दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार, सद्भावना और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने का कामना आप सबके मन में है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका साधुवाद। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आज धारा 370 पर मुझे बोलने का मौका मिला है और धारा 370 पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब से होश संभाला है तब से हम नारा एक लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और वह कश्मीर सारे का सारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म स्थान, जिनका कर्म स्थान पश्चिम बंगाल रहा, ऐसी धरती पर जब मुझे धारा 370 पर बोलने का मौका मिला है तो मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया, सर्वस्व दे दिया। कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ पश्चिम बंगाल, लेकिन एक देश एक वेश, और देश के साथ साथ एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, इस बात के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसी धरती पर जब मुझे आने का मौका मिला तो तब आने का मौका मिल रहा है और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया वह पूरा करके हम सब आए हैं, इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। ये छोटी घटना नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सारे जीवन से हम लोगों को जो प्रेरणा मिलती है और बंगाल के महापुरुषों से जो प्रेरणा मिलती है, फिर चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, फिर चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के दृष्टि से लड़ने वाले लोग हों, सुभाष चंद्र बोस हो, बंकिम चंद्र हो, संस्कार के दृष्टि से, बाकी सब दृष्टि से, यह धरती ने हमेशा, इस धरती ने हमेशा देश को नेतृत्व दिया है। और नेतृत्व सिर्फ बहादुरी में ही नहीं दिया है, विद्या में भी दिया है, संस्कारों में भी दिया है, संस्कृति में भी दिया है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और उनको नमन करके प्रेरणा लेता हूं। और धारा 370 की लड़ाई की जननी भी वेस्ट बंगाल रही, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस लड़ाई को शुरू किया था। मित्रों, ये धारा 370 के बारे में चर्चा करूं, यह है बड़ा टेक्निकल विषय, और इस टेक्निकल विषय को साधारण भाषा में समझाना कोई थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि देश में, दुनिया में फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद एक समय में, बाद में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, इन सब लोगों ने धारा 370 के बारे में गलत भ्रांति फैलाई और ये कहा कि दिस इज अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। 370 आर्टिकल इज ए स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। हम सबको स्पष्ट होना चाहिए कि यह स्पेशल स्टेटस नहीं था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलें और आप 370 आर्टिकल पर चले जाएं, तो जहां आर्टिकल 370 है उसके दाहिनी तरफ ही बड़े अक्षरों में लिखा है टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल। दिस आर्टिकल इज टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल। ये स्पेशल स्टेटस नहीं देता, ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसको रखने का प्रयास किया गया है और उसके लिए जम्मू कश्मीर को यह दिया गया है, ऐसा उस समय कहा गया था। यानी ये टेम्पररी है, इसको जाना है और जाने के लिए ही बना है। ये उसका उद्देश्य था। संविधान सभा में इसके बारे में कभी जब भी चर्चा हुई और संविधान सभा से बाहर जब भी चर्चा हुई तो हमेशा सभी लोगों ने इसका विरोध किया। Nobody was the taker, कोई इसको लेने को तैयार नहीं था, सारे लोगों का विरोध था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी, क्योंकि बाकी सारे राज्यों को जोड़ने का जिम्मा
सरदार पटेल के कंधों पर था और वो सारे के सारे जोड़ लिए गए थे। एक कश्मीर दिया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने विशेष रुचि दिखाई थी, और उस जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख को यह समझाया कि देखो तुम्हारी बात मैं समझा नहीं पा रहा हूं, तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, भारत रत्न, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे मिलो और उनसे मिलकर के अपनी बात कहो। वो मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनकी हमको सफल जरूरत होगी। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेख को क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर शेख, यू वांट दैट वी शुड प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। मिस्टर शेख, you want that we should provide food and other facilities to the people of Jammu Kashmir. Mr. Sheikh, you want that we should provide connectivity to you, build roads for you, give you schools, but you do not want that the Indian citizens should avail the facility of Jammu Kashmir. They should not be the citizens of India. That is what they will not be the citizens of Jammu Kashmir. You want that the people of India should not take the benefit of Jammu Kashmir. This is not possible so long as I am the law minister of the country. ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक मैं भारत का लॉ मंत्री रहूंगा, विधि मंत्री रहूंगा, कानून मंत्री रहूंगा, यह संभव नहीं है कि तुम्हारे बॉर्डर्स को हम प्रोटेक्ट करें, तुम्हारे सिटीजन्स को हम प्रोटेक्ट करें, रोड हम दें, अनाज के भंडार हम भरें, और जब बारी देश के नागरिकों की जम्मू कश्मीर में के बारे में आए तो उनको कोई अधिकार ना हो। यह हम संभव नहीं होगा, यह हम नहीं करेंगे। बाद में बहुत मुश्किल से गोपाल स्वामी अयंगर ने 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर को संविधान सभा में एक बात रखी और उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इज टेम्पररी। Article 370 will be transitional. Article 370 will be to introduce the Constitution of India into the state of Jammu Kashmir. ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो, इसके लिए होगा। और उन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद महाराजा हरि सिंह हुआ है, यह सारे का सारा कंप्लीट है, पूरे का पूरा है, और इसमें कोई भी व्यवधान नहीं होगा। यह सारे का सारा जम्मू कश्मीर में कहलाएगा। और उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 1 के शेड्यूल 1 में जम्मू कश्मीर को डिफाइन किया, पैराग्राफ 15 में, और उन्होंने कहा द होल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, accession which has taken place with the signature of Maharaja Hari Singh, is the present state of Jammu Kashmir of the Union Territory of India. यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को डिफाइन कर दिया गया कि जो जमीन हमने महाराजा हरि सिंह से ली वो सारे का सारा जम्मू कश्मीर की स्टेट कहलाएगी और वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट होगा। इसलिए एक्सेशन इज कंप्लीट, और इसलिए वो शेड्यूल 1 में उसको लिख करके उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डिफेंस, जम्मू कश्मीर में एक्सटर्नल अफेयर्स और जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी, यानी उसको डिफेंस प्रोवाइड करना, एक्सटर्नल अफेयर्स की दृष्टि से भारत की सरकार के अंतर्गत वो टेरिटरी आएगी, और कनेक्टिविटी हम देंगे, और कनेक्टिविटी से निकलने वाले जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी हम प्रोवाइड करेंगे। और ये कहा कि क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है जम्मू कश्मीर में, वहां काबाइलियों के साथ लड़ाई चल रही है, इट इज एट वॉर टाइम, विधानसभा एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जैसे ही विधानसभा बन जाएगी तो भारत का संविधान धारा 370 के प्रोविजंस को समाप्त करके पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू हो, जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन नियति कुछ और थी, नीयत कुछ और थी। संविधान सभा ने ड्राफ्ट करते समय आर्टिकल 370 को डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। लेकिन हमारे दो लोग बड़े समझदार थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि अगर आप 370 डालते हो तो 370 के साथ साथ 1D भी डालो और 373 भी डालो। क्या है 373? 370
subclause 3, that the president will have the power to proclaim anything related to Jammu Kashmir with the consent of the Samvidhan Sabha of Jammu Kashmir. यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर रखो और इस पावर के माध्यम से हम उस काम को कर सकेंगे. कभी भी कुछ बात होगी तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकेगा. लेकिन जैसा मैंने कहा, नीयत कुछ और थी. नीयत क्या थी? वहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 लागू नहीं हुआ. अब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जब लागू नहीं हुआ तो वहां डीलिमिटेशन नहीं हुआ. जब डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो पुराने लिमिटेशन पर 75 सीट्स पर इलेक्शन हुआ और शेख अब्दुल्ला ने वहां की प्रजा परिषद की पार्टी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पार्टी, उनके 23 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के रीजन में खड़े हुए. शेख अब्दुल्ला ने सारे 23 के 23 लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल करा दिए और उनको समाप्त कर दिया और सारी 75 सीटों पर शेख अब्दुल्ला के कैंडिडेट्स जीत करके चले आए. The whole constituent assembly was converted into Vidhan Sabha, and the Vidhan Sabha was elected by 75 members, where was the members of the members of the शेख अब्दुल्ला की पार्टी के, उन्हीं के सब सदस्य थे. धारा 370 का विरोध उस समय नहीं हुआ. धारा 370 का विरोध तब हुआ जब 75 के 75 लोग ये जीत करके आ गए. तब 1951 में एजिटेशन स्टार्ट हुआ और वो एजिटेशन प्रजा परिषद के नेतृत्व में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में शुरू हुआ, विच कैरिड ऑन टिल 1954, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान और उसके बाद का समय आया. और उसी में लगभग 10,000 15,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, 20 लोगों के आसपास बलिदान हुए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी में विदाउट परमिट, जब वो एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान की बात कहते हुए परमिट को बिना लिए हुए जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उनका बलिदान हुआ. वो सरकारी अस्पताल में उनकी डेथ हुई और बड़ी लाचार हालत में. और ये इस बात को बताता है कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया. लेकिन ये एजिटेशन हुआ. इस एजिटेशन के दौरान शेख अब्दुल्ला का नजरिया बदल गया. उसने इस विधानसभा को सॉवरेन बॉडी कहना शुरू कर दिया. एंड व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग सॉवरेन बॉडी, तब नेहरू का दिमाग ठनका और उन्होंने कहा कि अब तो बहुत गलती हो गई. इट इज नाउ समथिंग, जो हो गया है सो हो गया है, कैसे करें. तो उन्होंने एक दिल्ली एकॉर्ड किया जिसको हम दिल्ली समझौता कहते हैं. दिस समझौता इज नीदर ऑथेंटिकेटेड नॉर इट इज साइंड, और न ही ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है. लेकिन उसमें ये फैसला हुआ, उसमें इन्होंने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा और जम्मू कश्मीर का अलग गवर्नर होगा जिसको सदर रियासत कहा जाएगा, और जम्मू कश्मीर का गवर्नर विधानसभा चुनेगी, न कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा. तो ये इन बातों के लिए समझौता हुआ, दिल्ली एकॉर्ड बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला. आप देखते होंगे दोनों की तस्वीरें कई बार जब दिखती हैं, उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है. लेकिन उसके बाद 1954 में एक समझौता हुआ और 1954 में एक प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निकला जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 370 में से हम 35A बनाते हैं. और 35A ने यह ताकत दे दी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का सिटीजन कौन है, हु विल बी द सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर. यानी PRC, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, एंड नॉन PRC, ये दो क्रिएशन हो गए 35A के तहत. और इस 35A के तहत ये ताकत दे दी गई. लेकिन ये प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन जरूर था, लेकिन यह संविधान के मूल धारा के विरोध में था. इट वॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज यू कांट डिस्टिंक्ट बिटवीन टू सिटीजन्स इन द सेम कंट्री. दो सिटीजन को अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते हो. राइट टू इक्वालिटी का असर पड़ता है, लेकिन न वो पार्लियामेंट से पास हुआ और न ही उसको वो बेसिक डेमोक्रेसी के
हमारे जो टेनेट्स थे उसमें आता था, लेकिन हो गया पास, और उस समय जब पास हो गया तो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में जब लागू हो गया तो सेपरेट रजिस्टर, स्टेट के सिटीजन्स का रजिस्टर बना, गवर्नर का जैसे मैंने कह दिया कि वो इलेक्टेड होगा, सेपरेट फ्लैग बन गया, और सेपरेट फ्लैग के साथ साथ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जिसके कारण से ये सारा कुछ हुआ। जो हमको इसमें से बात समझनी है कि इसके असर क्या पड़े। इसका असर ये पड़ा कि भारत के संविधान ने जो 104 कानून पास किए, ये सारे के सारे कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगे। और इसीलिए आज जो खुशी आपको हो रही है, आपके बराबर की खुशी जम्मू कश्मीर में भी है। ये हम सबको मालूम नहीं है। पीपल इन जम्मू कश्मीर आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज देयर फंडामेंटल राइट्स वर डिनाइड। आज उनको वो फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? द होल ऑफ जम्मू कश्मीर, द होल ऑफ लद्दाख। आपने लद्दाख का स्टेटमेंट सुना होगा ना, नामग्याल की स्पीच आपने सुनी होगी। दैट स्पीक्स अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। द होल ऑफ लद्दाख इज ट्राइबल। द पीपल मुस्लिम, जो बकरवाल हैं और जो गुजर भाई हैं, दे आर मुस्लिम्स, लेकिन वो ट्राइबल हैं और वो देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, अगेंस्ट पाकिस्तान। इन दोनों को देयर इज नो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ट्राइबल नाम की सीट जम्मू कश्मीर में नहीं है। देयर इज नो ट्राइबल सीट। हमारा ट्राइबल जीत के आता है, लेकिन ट्राइबल सीट नहीं है। अब यह धारा 370 समाप्त हुई है, डीलिमिटेशन होगा। कम से कम 9 सीटें विधानसभा में निकलेंगी जो ट्राइबल होंगी, और कम से कम 1 सीट निकलेगी जो लोकसभा में ट्राइबल होगी। लेकिन जो लोग अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनसे पूछो कि यह ट्राइबल सीट क्यों नहीं थी, क्यों ट्राइबल सीट नहीं दी गई। वहां पर जो हमारे हरिजन भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, उनके लिए पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उनको, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनको लिमिट करता है कि तुम और तुम्हारे बच्चे सिर्फ सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते हैं। यू आर नॉट सर्टिफाइड टू फॉर एम्प्लॉय इन जम्मू कश्मीर टेरिटरी ओनली अदर देन सफाई कर्मचारी। आज जो बड़े अपने आप को प्रोग्रेसिव बनते हैं और इसके विरोध में खड़े हुए, उनसे पूछिए कि आपने दलितों के साथ क्या किया, आपने वाल्मीकियों के साथ क्या किया, आपने सफाई कर्मचारियों के साथ क्या किया। वहां पर विमेन को, इफ ए विमेन मैरीज ए नॉन पीआरसी, यानी जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, तो शी विल बी डिनाइड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जम्मू कश्मीर। शी विल बी डिनाइड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जम्मू कश्मीर। यानी भारत का कानून राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी वहां लागू नहीं होता है। और मजेदार बात सुनिए, बहुत मजेदार, कि एक महिला ने केस किया कि मेरे को नहीं प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन मेरे बच्चों को तो होना चाहिए, बिकॉज वो मेरे से पैदा हुए। तो इस पर जब कानून आया और हाईकोर्ट ने उनका साथ दिया, तो ये उमर अब्दुल्ला, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न और बड़े 21वीं शताब्दी का नेता कहता है, अंग्रेजी बोलता हुआ ट्वीट करता है, ये जो अपने आप को मॉडर्न बोलने वाले उमर अब्दुल्ला हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद, दोनों ने मिलकर के एक रिहैबिलिटेशन बिल लेकर के आ गए संसद में, विधानसभा में, और वहां पारित कर दिया कि महिलाओं को तो राइट है ही नहीं, उनके बच्चों को भी राइट नहीं होगा। ये उन्होंने पास कर दिया और 6 मिनट के अंदर ऐसा बिल पास करके रख दिया। ये दे वर डिनाइड फ्रॉम द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पर चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ देयर इज नो लॉ, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ देयर इज नो लॉ। पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट राजीव गांधी लेके आए थे। उसमें यह था कि पंचायत के प्रधानों को सीधी पावर दी जाएगी और दिल्ली की तिजोरी से जो पैसा निकलेगा वो सीधे का सीधा पंचायत के प्रधान के पास पहुंचेगा। दिस इज 73rd 74th अमेंडमेंट। लेकिन इन्होंने, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह गए जम्मू कश्मीर में, बट दिस वाज नॉट इंप्लीमेंटेड और वहां पैसा नहीं जाता था। धारा 370 हटने के बाद अब मोदी जी के द्वारा जो पैसा जाता है वो सीधे हजारों पंचायत के प्रधानों को जा रहा है और वहां विकास शुरू हुआ। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रधान खुश हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 6-7-8 महीने पहले इलेक्शन हुआ पंचायत का। न पार्टिसिपेट किया पीडीपी ने,
न ही पार्टिसिपेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और न ही पार्टिसिपेट किया कांग्रेस ने। ये पार्टिसिपेट करने से भाग गए और वहां हजारों लोग चुन करके आए और मोदी जी ने सीधा जो तिजोरी में पैसा पहले इन 3 परिवारों के पास जाता था, यानी तिजोरी में जाता था और वहां से लूट हो जाता था, उस सारे पैसा को प्रधानों तक सीधा पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। यह पंचायती राज में परिवर्तन करके दिया है। ऐसे आप जानकर आश्चर्य होंगे, 1976 में 43rd अमेंडमेंट आया और 43rd अमेंडमेंट में हमारे प्रियम्बल में जुड़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, और ये सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा और इंटीग्रिटी इसकी इंडिया होगी, इंटीग्रेटेड होगा, ये उसमें जोड़ा गया। सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया, सेक्युलर था, सोशलिस्ट जोड़ा गया, ये अमेंडमेंट आई। आप जान करके आश्चर्य होंगे कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा, अलग से संविधान सभा, उन्होंने पारित किया कि इसमें से सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, ये विलोपित कर दी जाए, इसको विलोपित कर दिया जाए। आप समझिए कि क्या चल रहा था। आर्टिकल 370 का सहारा लेकर के क्या क्या चल रहा था। हम लोग शपथ लेते हैं, हम क्या कहते हैं, वी आए, अपना नाम लेते हैं और कहते हैं डू हियर सॉlemnly affirm that I will bear true faith to the Constitution of India, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हम भारत के संविधान की सच्ची रक्षा करेंगे और अक्षुण रखेंगे, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने क्या किया कि ट्रू फेथ, देयर ए ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को काट करके कर दिया, वी विल बेयर ए ट्रू फेथ, मैं फलाना ईश्वर अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। भारत का संविधान को हटा दिया, यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। दिस इज आर्टिकल 370, जिसको हमको समझना चाहिए। मैंने बताया विमेन एट्रोसिटी के बारे में नहीं जा सकते हैं। हमारा हरिजन एक्ट लगा था जिसमें हमारे ये जो दलित भाइयों के साथ अत्याचार होता है उसके खिलाफ, जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगा है। 104 कानून ऐसे हैं जो लगने चाहिए थे, जो नहीं लगे, और ये सारे कारण बने, जिन कारणों को लेकर के एक बहुत बड़ा मुहिम खड़ा हुआ था, सब लोगों को मालूम है। और हम लोग तो बचपन से नारा लगाते थे, एक देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 सुबेरे सुबेरे रामनाथ कोविंद जी ने, राष्ट्रपति जी ने प्रोक्लेमेशन साइन किया। 11 बजे उसी प्रोक्लेमेशन को लेकर के संविधान की अनुमति लेने के लिए और संसद की अनुमति लेने के लिए अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, खड़े हुए। मैं नमन करता हूं मोदी जी की इच्छा शक्ति को और अमित शाह जी की रणनीति को, जो बरसों से चला काम था उसको पूरा किया उन्होंने। और उन्होंने सुबेरे आकर के घोषणा की कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति जी ने प्रोक्लेमेशन किया है कि 370 की और 370 की सारी धाराएं विलोपित कर दी जाएं। और सुबह डिस्कशन शुरू हुआ और शाम तक धारा 370 धाराशाही हो गया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा आपने तो बम फोड़ दिया, उनके लिए बम था। देखो इनकी राष्ट्रवाद की नीति, कैसी राष्ट्रवाद की नीति रखते हैं ये। लेकिन हां, 370 राज्यसभा में आया और आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, हमारे पास सिर्फ 84 वोट थे, वहां 125 वोट हमको मिले। 41 वोटों से ज्यादा हमको बाहर से मिले और हमको पूरा का पूरा मेजॉरिटी मिली और हम उसको में सफल हुए। दूसरे दिन वो लोकसभा में पारित हुआ और तीसरे दिन राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन कंफर्म हो गया, अधिसूचना जारी हो गई और धारा 370 के सारी धाराएं समाप्त हो गई। 35A का 35A प्रावधान समाप्त हो गया। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इस संविधान के साथ कैसा कैसा खिलवाड़ किया था। 35A is not in the original Constitution of India. You will find 35A in the appendix. अपेंडिक्स में 35A जोड़ दिया गया और भारत में 2 किस्म के नागरिक होंगे, ये जोड़ दिया गया। जो बेसिक आर्टिकल, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो वाला प्रावधान कर दिया गया। ऐसी ऐसी चीजें इस देश में होती रही। लेकिन हां, हमारे भी अमित शाह जी की कुशल राजनीति और रणनीति देखिए। जब जम्मू कश्मीर में प्रोक्लेमेशन आया गवर्नर्स रूल का, तो गवर्नर्स रूल का जब प्रोक्लेमेशन आया तो हमारे अमित जी उठे और उन्होंने कहा
356 should be read with 356B. और 356B क्या कहता है कि when the Vidhan Sabha is not operative, the powers of Vidhan Sabha will go to the Parliament of the India. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को वो ताकत उस दिन मिल गई, और जब ये पारित हो रहा था तो हमारे गृह मंत्री जी ने उठ करके कहा कि ये सर्वानुमति से हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है, ये आप इसको रिकॉर्ड पर डाल दीजिए। यानी यूनानिमसली दिस रेजोल्यूशन हैज बीन डन दैट आर्टिकल 356 बी रेड विद 356 बी। और बी का मतलब यह हो गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की ताकत इंडिया के पार्लियामेंट में आ गई, और इंडिया के पार्लियामेंट में आ गई तो 5 तारीख को हमको ताकत मिल गई जिसके माध्यम से हम कर सके। यहां हमारे बहुत से सांसद चुन करके आए हैं, वो यहां बैठे हैं, आप लोग खुशी मना रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं वोट की ताकत क्या होती है। वो उन सांसदों से पूछिए जिनको वो ताकत, आपने मई महीने में यहां से चुन करके सांसद भेजे, हमारी संख्या 303 पहुंचाई, आपकी उंगली में वो ताकत थी, जिस उंगली की ताकत को आपने ईवीएम मशीन पर दबाया और उसके कारण वो हो सका। और आपकी उंगली की ताकत से जो हम लोग बने थे, हमें वो ताकत 5 तारीख को आई कि हमने उस उंगली से दबा करके 370 को समाप्त कर दिया। ये हमारी ताकत को समझना चाहिए। इसलिए सही में धन्यवादी आप हैं, आप लोगों ने ताकत दी, जिसने हमें ये ताकत दी और हम उस ताकत को कर सके। जब ये वोटिंग हो रही थी तो मैं उस समय सोच रहा था कि कितना बड़ा ऐतिहासिक मौका हमें मिला है। 70 साल से हम कोशिश कर रहे थे और हमारी उंगली को ये ताकत मिली है कि हम उसके माध्यम से, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370, जिस पर नारे लगाते रहे बचपन से। इतनी बड़ी ताकत हमको मिली, और क्या रणनीति थी। उस रणनीति के तहत ये सारे का सारा हुआ है और ये हमको सफलता मिली। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इससे अंतर क्या आया? इससे अंतर ये आया कि कुल मिलाकर के जहां हमको एक तो राष्ट्रीय एकता कंप्लीट हो गई, देयर इज नो क्वेश्चन, द होल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री इज नाउ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत सारे का सारा भूमि जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आ गया। ये राष्ट्रीय एकता का परिणाम हुआ। लद्दाख के साथ वर्षों से नुकसान हो रहा था और उनकी अवहेलना हो रही थी। दे वर बीइंग इग्नोर्ड। आपने नामग्याल का लोकसभा में स्टेटमेंट देखा होगा, सुना होगा आपने। कितना दर्द है उसके दिल में। ये दिल्ली से जो हम पैसा भेजते थे, ये सारे का सारा श्रीनगर और आसपास लग जाता था। जम्मू लड़के कुछ ले ले तो ले ले, नहीं तो जम्मू वंचित रहता था, और लद्दाख को तो कभी मिलता ही नहीं था। यह परिस्थिति थी। आज यूनियन टेरिटरी बनकर के खड़ी हो गई है, हिल काउंसिल बन गया है, और वो हिल काउंसिल बनेगा और उसके माध्यम से दिल्ली का पैसा सीधे पहुंचेगा और बॉर्डर एरिया में हम विकास करेंगे, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, उनके बच्चों को प्रॉपर्टी की राइट नहीं। हमारे वाल्मीकि भाई के बच्चे सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। अब 370 जाने के बाद और 35 जाने के बाद सफाई कर्मचारी का बेटा भी जम्मू कश्मीर की जुडिशियल सर्विस में नौकरी के लिए आवेदन भर सकेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जा सकेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून नहीं, चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए उसके खिलाफ कानून नहीं था, बच्चों के खिलाफ अन्याय था, महिलाओं के साथ अन्याय था। ये सारे के सारे अब समाप्त हो जाएंगे, और इसी के माध्यम से, जिसको कहते हैं कि केंद्र शासित राज्य के माध्यम से ये सारे का सारा होगा। SC ST एक्ट जैसे मैंने बताया, उनके खिलाफ वो लागू नहीं था। आज अब वहां पर SC ST एक्ट भी लगेगा, जिसके तहत उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। मित्रों, यह दृढ़ इच्छा शक्ति का जहां ये काम हुआ है, जिसके कारण से ये काम हुआ है, और रणनीति के कारण हुआ है, यह देश को बहुत बड़ी मजबूती देने वाला विषय हुआ है। मैं चाहता हूं, हमने कोशिश की आपको कि मैं टेक्निकल कुछ बातें आपको समझाऊं, हालांकि कठिन होता है, और मैं भी समझ रहा हूं कि कितना आप समझ पाएंगे और कितना मैं समझा पाऊंगा मालूम नहीं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि देश के नेताओं ने हमारे साथ किस तरीके से कानून के अक्षरों में हमको उलझा करके रख दिया था, और किस तरीके से अलगाववाद के बीच जम्मू कश्मीर में बोने का षड्यंत्र रच दिया था।
देखिए, टेररिज्म तो सब जगह होगा, बाकी सब जगह क्यों नहीं पनपता? वहीं क्यों पनप रहा था? समझने वाली बात है। टेररिज्म की कोशिश करने वाले तो बाकी जगह भी कोशिश करते होंगे, लेकिन क्यों नहीं होता था? और क्यों जम्मू कश्मीर में पनपता था? कि उसकी अलगाववाद की बीज 370 में पड़ी हुई थी। और मैं बड़े दुख के साथ आज यहां पर ममता जी से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए देश से बड़ा वोट बैंक है? वोट बैंक की राजनीति महत्वपूर्ण है? देश किनारे रख दोगे इसके चलते? मैं चाहूंगा कि आप जन जन से पूछिए कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए थी कि नहीं, और होनी चाहिए थी तो ममता की पार्टी ने क्यों विरोध किया, इसको भी आपको जनता के सामने रखना चाहिए। क्यों विरोध किया? देश से बढ़कर के वोट, देश से बढ़कर के कुर्सी, देश से बढ़कर के सत्ता, इस तरह की राजनीति चलती है। और दुख की बात और देखिए, इनके दूसरे राहुल गांधी जी को यूएनओ में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात को लेकर के जाता है तो दलील जो देता है वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लाकर के देता है यूएनओ में। मतलब अगर आर्गुमेंट ये जैसे कि पाकिस्तान के वकील लगे हुए हैं, ये है इनकी देशभक्ति, ये पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। ये है राष्ट्रभक्त पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और यह है तृणमूल कांग्रेस, जो देश के आगे अपने वोट को ही सबसे आगे समझती है। इसलिए जन जागरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ही, और जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस दिन से लेकर 1952 से लेकर 2019 तक किसी ने भी अगर अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रखा तो वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने रखा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए राष्ट्रभक्ति का पाठ कोई और करे ये जरूरी नहीं, ये काम हम ही लोगों ने किया है, हमारी विचारधारा ने किया है और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने किया है। मैं उन पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, उन्होंने हमारा साथ दिया, उनके लिए देश सर्वोपरि था। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, धन्यवाद, उनको हम धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ममता से ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सा राजनीति चल रहा है और कहां कहां ले जा रहे हैं, कहां देश को ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश रहेगा, मजबूत रहेगा तो राजनीति में, सत्ता में कोई आएगा जाएगा, ये तो चला रहता है। और वैसे भी अब आपके जाने की बारी है। इट इज रिटन ऑन दी वॉल, दीवारों पर साफ लिखा हुआ है, तुम जाने वाले हो, हम आने वाले हैं। ये बात को तय करके चलिए, यह स्पष्ट संकेत है। और इसलिए जमीन खिसक चुकी है आपकी। और एक बात और बता दूं, राजनीति में संयम रखना बहुत जरूरी होता है। संयम ना रहे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपरीत की तरफ आप चल पड़े हैं, विनाश निश्चित है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा, देश की सेवा में कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी कहूंगा कि कभी भी उनको मौका मिले 370 का साथ देना चाहिए था, 370 को समाप्त करने में साथ देना चाहिए था। वो चूक गए मौका, सत्ता देश से ऊपर हावी हो गई, वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी हो गया। उत्तर देना चाहिए और वो उत्तर नहीं देंगे। मैं आप सबसे पूछूंगा, बोलूंगा कि आप वो उत्तर मांगिए एक एक कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस से कि क्या राजनीति तुम कर रहे थे और क्या देश को बेचने का काम कर रहे थे, क्या देश को मुसीबत में डालने का काम कर रहे थे। इसका जवाब चाहिए। और मित्रों, मुझे दिखता है कि उनके पास जवाब देने की ताकत नहीं है और आपको रोकने की ताकत भी उनमें नहीं है। आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় নাড্ডাজিকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার আগে আমি একটা আপনাদেরকে সূচনা জানাই যে আগামী 1 তারিখ সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শাহজি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর
1:30 এনআরসি নিয়ে এবং সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে বলতে আসবেন। আপনারা সবাই সেখানে উপস্থিত হবেন। আমি এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য কালকে আমাদের কার্যকরী সভাপতি মাননীয় নাড্ডাজি, আপনারা জানেন যে আমাদের যে পরিবারগুলো নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গরা আসবেন। কালকে বাগবাজারে তর্পণ হবে, 10:30টার সময় বাগবাজারে মাননীয় নাড্ডাজি উপস্থিত থাকবেন। भारत माता की। ये जो राजूदा ने लास्ट की सूचना दी है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पिछले 3-4 वर्षों में बंगाल के 80 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। उस बलिदान का परिणाम यह है कि आज बंगाल परिवर्तन की ओर जा रहा है और 18 सांसद हमारे जीत कर गए हैं और 20 सांसद दूसरे स्थान पर आए हैं। और इसलिए बंगाल बीजेपी ने तय किया है कि ऐसे बलिदानी कार्यकर्ताओं को श्रद्धा अर्पित करना, उनका स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और माननीय अमित भाई, अपने सर्वभारतीय सभापति से हमने जब निवेदन किया तो उन्होंने स्वयं कहा कि नड्डा जी भी मेरी ओर से उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे और बंगाल बीजेपी ने कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। कल उस कार्यक्रम का, जिसको हम तर्पण का कार्यक्रम बोल रहे हैं, गंगा जी के किनारे है, उसकी सूचना राजूदा ने दी थी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिनके बलिदान के कारण से ये परिवर्तन आ रहा है उनको हम अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए गंगा जी के घाट पर पहुंचकर निश्चित समयानुसार वहाँ पर अपनी भी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करें। राजूदा की सूचना को बढ़ाने के लिए मैं स्वयं खड़ा हो गया था इसलिए, और इसके पीछे की भावना को भी समझें, बंगाल की जनता को भी ये बताएं और बीजेपी अपने बलिदानियों को किस प्रकार से स्मरण करती है और किस प्रकार से श्रद्धा निवेदित करती है, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान में आए। इतना स्मरण रखने की आवश्यकता। कल सब आइए। আর একটা সূচনা আছে, বলে দিচ্ছি আমি দুটো কালকে সকাল 10টায় নবজাগরণের রূপকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 200 বছর চলছে, তার জন্য সকাল 10টায়